اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خدا کی قسم یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کر دو، دروازوں پر ہلا بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے۔ اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، اب بھی وقت ہے، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، باہر آ کر بات کرو۔ قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چچک کے چند ایک داغ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار سے کہا، خدا کی قسم تو عقل والا ہے، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوست دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاتھ نہیں، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار ماں نیام کھول کر خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ عنہ کے آگے پھینک دی۔ رومی سالار نے پوچھا، اب بتا اے سالار مدینہ، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے رومی سالار، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو عرق کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کروا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوفزدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان سے وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ عرق سے آگے 2 مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عرق پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے، مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھیں۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر
खैर तुम्हारी झोली में डाल दिया। तकब्बुर न करना और ये न भूलना कि हमारे साथ वो परचम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखा करते थे। ये परचम नहीं, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस है जो हमारे साथ है। तुमने सब्र और तहम्मुल की, जुर्रत और शुजात की जो रिवायत कायम की है, ये हमारी आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाने वाली रोशनी का काम देगी। हमें अभी और रिवायात कायम करनी है और यही रिवायात इस्लाम को जिंदा रखेंगी। ऐसी कुछ और बातें करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अगली पेशकदमी के मुताल्लिक अहकाम देने लगे। उन्होंने दो दस्तों के सालारों से कहा कि वो अगले दो मकामात पर कब्जे के लिए जाएंगे। एक को सखना और दूसरे को कदमा जाना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि उन्हें एक एक दस्ते से उन दोनों बस्तियों को लेना है। जासूसों की इत्तला के मुताबिक ये दोनों बस्तियां छोटे छोटे कलों या कलानुमा हवेलियों का मजमुआ थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों से कहा, अरक की फतह दोनों बस्तियों की फतह को मुश्किल बना चुकी होगी। अरक के शिकस्त खुर्दा आदमी वहाँ पहुँच चुके होंगे। ईसाई और रूमी अरक की शिकस्त का इंतकाम जरूर लेंगे। तुम्हें बड़े सख्त मुकाबले का सामना होगा, पसपा न होना, मैं कुमक तैयार रखूंगा। अल्लाह ने हमें ये अड्डा दे दिया है, मैं तुम्हारी मदद को पहुंचूंगा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम एक पैगाम लिखवाया और एक कासिद को देकर कहा कि फजर की नमाज के फौरन बाद वो रवाना हो जाएगा और ये पैगाम अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को दे आए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उन 28,000 मुजाहिदीन के एक हिस्से के सालार थे जो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना से तैयार करवा के शाम की फतह के लिए रवाना किया था। उस लश्कर के 4 हिस्से किए गए थे और हर हिस्सा शाम की सरहद पर एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच गया था। सालार अबू उबैदा जाबिया के इलाके में थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पैगाम भेजा कि वो जहां भी हैं वहीं रहें और जब तक उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से कोई हुक्म न मिले वो कोई हरकत न करें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बताया, और मैं तदमुर जा रहा हूँ। तदमुर बाकायदा कला है, उसे सर करना आसान नहीं होगा, इसलिए इसे मैंने अपने जिम्मे ले लिया है। मेरे रफीक को मालूम नहीं हम एक दूसरे को जिंदा मिल सकेंगे या नहीं। ये ख्याल रखना कि हम अल्लाह के हुजूर इकट्ठे होंगे तो ना अल्लाह के आगे शर्मसार हों ना एक दूसरे के आगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुजाहिदीन का जो लश्कर था उसकी तादाद 9,000 पूरी नहीं थी। उसे भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से को एक एक मकाम फतह करना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन उन्हें अल्लाह की जात पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सुबह होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तदमुर की तरफ कूच कर गए और 2 सालार अपने अपने दस्तों को लेकर सखना और कदमा को रवाना हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाते ही तदमुर के किले का मुहासरा कर लिया। उसमें भी ईसाइयों की फौज थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारों के साथ किले के दरवाजों पर हल्ले बोले और बार बार ऐलान करवाया कि किला उनके हवाले कर दिया जाए। ये देखा गया कि किले के दिफा में लड़ने वालों में कोई जोशो खरोश नहीं था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि किले का दरवाजा खुला और ईसाई सरदार बाहर आ गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि वो किन शराइत पर सुलह करना चाहते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिज़िया अदा करो और ये माहिदा कि यहाँ से मुसलमानों का जो भी लश्कर या दस्ता गुजरेगा उसे खाने पीने का सामान तुम मुहैया करोगे और किले में रुकना हो तो तुम उसे जगह दोगे। एक ईसाई सरदार ने पूछा, तुम्हारी फौज लूट मार तो नहीं करेगी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिज़िये के एवज तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जानों और अमवाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। किसी और ने तुम पर हमला किया तो मुसलमान तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे और तुम रूमी और गुस्सानियों का साथ नहीं दोगे। एक सरदार ने कहा, इब्ने वलीद, हमने जैसा सुना था तुझे वैसा ही पाया, अब तू हमें अपना दोस्त पाएगा। ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने आला नस्ल का एक घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया। ये बड़ा कीमती घोड़ा था। ये दूसरा कला था जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में आन पड़ा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। उधर सखना और कदमा में एक जैसा ही मौजज़ा हुआ। दोनों दस्तों के सालारों पर हेजानी कैफियत तारी थी। एक खतरा ये था कि वो दुश्मन मुल्क के ज्यादा अंदर यानी गहराई में जा रहे थे, दूसरे ये कि अरक से फौजी चले गए थे। उनका उन कस्बों में होना वहाँ के लोगों को साथ मिलाकर मुकाबले में आना लाजमी था। और सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि दोनों सालारों के पास सिर्फ एक एक दस्ता था। दोनों दस्ते तकरीबन एक ही वक्त अपने अपने हदफ पर पहुंचे। दोनों सालारों ने अपने अपने तौर पर यह तय कर लिया था कि उनका मुकाबला अगर ज्यादा तादाद से हो गया तो वो जमकर नहीं लड़ेंगे बल्कि घूम फिर कर और दुश्मन को बखेर कर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मदद नहीं मांगेंगे क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक किले पर हमला करने गए थे। ईमान के जज्बे की ये इंतहा थी कि वो इतनी कलील तादाद में कहाँ जा पहुंचे थे।
उन्होंने अपनी जानें और अपने अमवाल अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। वो अपनी बीवियों और अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को फरामोश किए हुए थे। उन पर ये नशा तारी था कि कुफ्र के फितने को खत्म करके अल्लाह के पैगाम को जमीन के दूसरे सिरे तक पहुँचाना है। उनके दिलों में अल्लाह का नाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था और उनके जहनों में कोई वहम और कोई शक न था। जिहाद उनकी इबादत थी और वो अल्लाह ही से मदद मांगते थे। एक सलार सखना के करीब और दूसरा कदमा के करीब पहुंचा तो दोनों जगहों पर एक ही जैसा मंजर देखने में आया। वहाँ के लोग बाहर निकल आए और उनकी तादाद बढ़ती गई। सलारों ने अपने अपने दस्ते को फैला दिया। जहाँ कोई धोखा दिखाई दे रहा था वो लोग मुसल्ला नहीं थे। उनकी औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और सब हाथ ऊपर करके हिला रहे थे। सलारों ने अपने अपने दस्ते को महासरे की तरतीब में कर दिया। उनकी नजरें उन मकानों पर लगी हुई थीं जो छोटे छोटे कलों की मानंद थे। सलारों को खतरा ये नजर आ रहा था कि वो अगर आगे बढ़ेंगे तो उन मकानों से उन पर तीर बरसने लगेंगे। वो रुक रुक कर आगे बढ़ने लगे। दोनों बस्तियों की आबादी अरबी ईसाइयों की थी। उनमें 4-5 मोमर सफेद रीश आगे बढ़े। करीब आकर उन्होंने इस्तकबाल के अंदाज में बाजू फैला दिए। एक सफेद रीश ईसाई ने कहा, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। आओ दोस्तों की तरह आओ, हम अमन के बंदे हैं। सालार ने कहा, और अगर हम पर एक भी तीर आया तो इस बस्ती की तबाही देखकर भी यकीन नहीं करोगे। ईसाई बुजुर्ग ने कहा, मकानों के दरवाजे खुले हैं, आबादी का एक बच्चा भी अंदर नहीं। देख लो, किसी के हाथ में कमान नहीं, बर्छी नहीं, तलवार नहीं। सालार ने पूछा, कहाँ हैं वो जो अरक से यहाँ आए थे? एक मोमर ईसाई ने कहा, कुछ हैं, कुछ चले गए हैं। उन्होंने ही हमें बताया है कि तुम्हारी फौज लूट मार नहीं करती, निहत्तों और बेकसों पर हाथ नहीं उठाती, और तुम ऐसी शर्तों पर दोस्ती कबूल कर लेते हो जो किसी पर बार नहीं होती। सालार ने कहा, और जो शर्तें कबूल न करे उसका अंजाम कुछ और होता है। ईसाई सरदार ने कहा, ऐ मदीना के सालार, बता तेरी शर्तें क्या हैं? सालार ने कहा, वही जो तुम्हारी पीठ उठा सकेगी और कमर को नहीं तोड़ेगी, यानी जिजिया। हम खुद देखेंगे कि जो जिजिया अदा करने के काबिल नहीं उससे हम कुछ नहीं लेंगे। ईसाई ने पूछा, कुछ और? सालार ने कहा, मुसलमानों का लश्कर या कोई दस्ता या कोई कासिद यहाँ से गुजरेगा तो ये इस बस्ती की जिम्मेदारी होगी कि उस पर हमला न हो। अगर वो यहाँ रुकना चाहें तो उनके जानवरों का चारा बस्ती के जिम्मे होगा। उनकी कोई और जरूरत जो तुम पर बार नहीं होगी तो वो तुम पूरी करोगे। हमारे लश्कर का कोई फर्द बस्ती के किसी घर में दाखिल नहीं होगा। तुम्हारी इज्जतों की और तुम्हारे जानो माल की हिफाजत के जिम्मेदार हम होंगे। रूमियों की तरफ से, गुस्सानियों और फारसियों की तरफ से तुम्हें कोई धमकी मिलेगी या तुम पर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब हम देंगे। दोनों बस्तियों में ऐसे ही हुआ। उस दौर में फौजों का ये रिवाज था कि बस्तियों को लूटती उजाड़ती चली जाती, कोई औरत उनसे महफूज न रहती। जो आबादियां उनके आगे झुक जाती थीं, उनके साथ तो फाते फौजें और ज्यादा बुरा सलूक करती। लेकिन ये रिवायत मुसलमानों ने कायम की कि जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसे अपनी पनाह में ले लिया और उसकी इज्जत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझा। उसी का असर था कि कुफार की बस्तियां उनके साथ दोस्ती के मुआहदे करती जा रही थीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला मिली कि सखना और कदमा की आबादी ने इताअत कबूल कर ली है तो उन्होंने वहाँ के लिए अम्माल मुकर्रर करके दोनों दस्तों को अपने पास बुला लिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। आगे क़रियतैन का कस्बा था जिसकी आबादी दूसरी बस्तियों की निस्बत ज्यादा थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके करीब पहुंचकर लश्कर को रोक लिया और अपने 2 नायबीन से कहा कि वो बस्ती में जाकर सुलह और मुआहदे की बात करें। ये दोनों अभी चले ही नहीं थे कि वहाँ एक आबादी ने दाएं और बाएं से मुसलमानों के लश्कर पर हमला कर दिया। ये हमला अगर गैर मुतवक्के नहीं तो अचानक जरूर था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को हुजूम की सूरत में नहीं बल्कि जंगी तरतीब में रखा हुआ था। वो आखिर दुश्मन मुल्क में थे। उन्होंने अपने 1-2 दस्ते पीछे रखे हुए थे। जो ही हमला हुआ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पीछे वाले दस्तों को आगे बढ़ा दिया। हमलावरों में बस्ती के लोग ज्यादा मालूम होते थे और उनमें कुछ तादाद बाकायदा फौजियों की भी थी। ये दूसरी जगहों मसलन अरक और तदमुर से आए हुए फौजी थे। ये सब लोग तादाद में तो ज्यादा थे लेकिन उनके लड़ने का अंदाज अपना ही था और ये अंदाज बाकायदा फौज वाला नहीं था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की जंगी चालों के सामने तो बड़े तजुर्बाकार सालार भी न ठहर सके थे। थोड़े ही वक्त में मुजाहिदीन ने उस हुजूम की ये हालत कर दी कि उनके लिए भाग निकलना भी मुहाल हो गया।
चूंकि ये लड़ाई थी और मुसलमानों पर बाकायदा हमला हुआ था, इसलिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगी उसूलों के तहत अहकाम दिए। मुसलमानों ने बस्ती पर हमला किया और माले गनीमत इकट्ठा किया, कैदी भी पकड़े और आगे बढ़े। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले से ज्यादा मोहतात हो गए थे। जूं वो आगे बढ़ते जाते उन्हें दुश्मन किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता जाता। इस झड़प से फारिग होकर आगे गए तो 8-9 मील आगे बेशुमार मवेशी चर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि तमाम मवेशी अपने कब्जे में ले लिए जाएं। ये हव्वारीन का इलाका था। मुजाहिदीन मवेशियों को पकड़ रहे थे तो हजारों आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ये सब ईसाई थे। गुस्सानियों की खासी तादाद न जाने कहां से उनकी मदद को आन पहुंची। ये एक शदीद हमला था। हमला आवर कहर और गजब से लड़ रहे थे। उनका एक ही नारा सुनाई दे रहा था, इन्हें काट दो, इन्हें जिंदा न जाने दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की हाजिर दिमागी और मुजाहिदीन की हिम्मत और उनके इस्तिक़लाल ने उन्हें उस मैदान में भी फतह दी। लेकिन मुजाहिदीन के जिस्मों में अगर कुछ ताजगी रह गई थी तो वो भी खत्म हो गई। किसी भी तारीख में मुजाहिदीन की शहादत और जख्मी होने के आदाद शुमार नहीं मिलते। उन पर जो हमले हुए थे उनमें यकीनन कई मुजाहिदीन शहीद हुए होंगे। बाज शदीद जख्मी होकर सारी उम्र के लिए माजूर भी हुए होंगे। शहीदों की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम हो सकती है, ये कहना कि कोई भी शहीद नहीं हुआ दुरुस्त नहीं। इस तरह मुजाहिदीन की तादाद कम होती जा रही थी और कुमक की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मुजाहिदीन सैलाब की मानंद बढ़े जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अब जंजीरों वाली खोद जिस पर वो सुर्ख इमामा बांधे रखते थे, रात को ही उतारते थे। लश्कर का कहीं कयाम होता तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के दरमियान घूमते फिरते। उनके चेहरे पर ताजगी और होंठों पर मुस्कुराहट होती। उनकी मुस्कुराहट में तिलिस्माती सा तासुर था जो मुजाहिदीन के हौसलों और जज्बे को तरोताजा कर देता। हवारीन के लोगों को शिकस्त देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ सिर्फ एक रात कयाम किया और सुबह दमिश्क की समत कूच कर गए। शाम और लबनान के दरमियान एक सिलसिला कोह है, उसकी एक शाख शाम में चली जाती है। दमिश्क से तकरीबन 20 मील दूर 2000 फुट की बुलंदी पर एक दर्रा है जिसका नाम सनियतुल उकाब यानी दर्राए उकाब है। उसे ये नाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था। दमिश्क की तरफ कूच के दौरान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर तकरीबन 1 घंटे के लिए रुका था और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना परचम उकाब यहाँ गाड़ा था। मौरिख लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी देर वहाँ रुके रहे। एक जगह खड़े दमिश्क की तरफ देखते रहे। उनके सामने जरखेज सरसब्ज और शादाब इलाका था। सहराओं का ये मुजाहिद इतना सरसब्ज और दिलनशी खित्ता देखकर हैरत का इजहार कर रहे थे। दमिश्क से 11-12 मील दूर मर्ज राहित नाम का एक शहर था। उसकी तमाम तर आबादी गुस्सानियों की थी। गुस्सानियों की बादशाही में हलचल बपा थी। उनके पाए तख्त बसरा में इत्तला पहुंच चुकी थी कि मुसलमान बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं और ईसाई उनके आगे हथियार डालते जा रहे हैं। गुस्सानियों का बादशाह जबला बिन अल अहम गुस्से में रहने लगा। फारसियों की तरह वो भी बार बार कहता था कि इन जरा जितने मुसलमानों को उसकी बादशाही में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई। उसने अपने जासूस भेजकर मालूम कर लिया था कि मुसलमान किस तरफ से आ रहे हैं और उनकी नफरी कितनी है। उसे आखिरी इत्तला ये मिली कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क से कुछ दूर हैं और वो मर्ज राहित के रास्ते दमिश्क तक पहुंचेंगे। जबला गुस्सानी ने कहा मर्ज राहित और सोच में पड़ गया। फिर भड़क कर बोला मर्ज राहित, क्या इन दिनों वहाँ मेला नहीं लगा करता? उसे जवाब मिला मेला शुरू है। जबला ने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया और उन्हें कुछ अहकाम दिए और कहा कि इन अहकाम पर फौरन अमल दरामद शुरू हो जाए। ये एक जाल था जो उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के लिए मर्ज राहित के मेले में बिछा दिया था। उसने कहा वो ईसाई थे जिन्होंने मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। मुसलमान इस खुशी के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं कि उनके रास्ते में जो भी आएगा उनकी इताअत कबूल कर लेगा। रूमियों को नीचा दिखाने वाले गुस्सानी अरब के बद्दुओं की इताअत कबूल नहीं करेंगे। हम मर्ज राहित में ही उनका खात्मा कर देंगे।